تقریباً 10-12 سے آج ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ہائکنگ ٹرپ میں فیمس کلائمبر، دنیا کا فیمس کلائمبر محمد علی ستپارہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم یہاں پہ اسکردو سے تقریباً 45 کلومیٹر دور خپلو کی جانب واڑی گاؤں سے تھوڑا سا پہلے ایک ٹیلے پر ہم پہنچے ہیں. یا یہ جگہ سطح سمندر سے تقریباً 12,000 فیٹ کی بلندی پر ہے. تو یہاں پہ محمد علی ستپارہ نے ہمارے لیے چائے بنایا ہے ان کے اپنی کلائمبنگ انداز میں. ہائکنگ کلائمبنگ جو ہائٹس پہ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے چائے بناتے ہیں. تو ٹماٹر چائے جی. تو عباس چوپا صاحب بھی ساتھ ہیں، ہمارا کلائمبنگ پارٹنر، ہائکنگ پارٹنر. تو سر آپ ذرا تھوڑا سا کچھ فرمانا پسند کریں گے ہمارے اس ٹرپ کے بارے میں؟ اور خیر محمد علی ستپارہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو بہرحال تھوڑا سا میں آپ بوٹل کپ سے شروع کرتا ہوں. اچھا جی. جی دیکھو، ہم کپس بول کے رہے تھے تو پانی کی بوتلوں کو کاٹ کے ہم نے کپ بنایا. تو محمد علی صاحب نے چائے بنا لی. محمد علی صاحب تو خیر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تعارف کی ضرورت ہماری ہے. تو ان کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد ہمیں موقع ملا. 2012 میں ہم نے ساتھ کلائمبنگ کی. اس وقت ہم نے K2 بیس کیمپ تک کا ٹریک کیا، کونڈوہرو ان کے ساتھ کیا. تو وہ ہمارے لیے اعزاز کے بعد، تب سے اعزاز کے بعد. یہ محمد علی صاحب ہمارے استاد ہیں. انہوں نے ہمیں پہاڑوں پہ چڑھنا سکھایا، کلائمبنگ سکھایا اور پہاڑوں کے داؤ پیچ سکھائے ہیں. تو ویسے بھی بحیثیت استاد بھی ہم ان کا بہت قدر کرتے ہیں. تو ابھی اللہ کا شکر ہے محمد علی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور میرے اور آپ کے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس بچگانہ ٹریک پہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے سٹیٹس کو بلکہ بہت نیچے لا کے ہمارے ساتھ یہاں تک آئے. تو یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. کروا دیں گے، میں آپ کو بول رہا ہوں، یہ کروا ہے دیسی روٹی. اس کو محمد علی صاحب نے خصوصی طور پر تیار کیا ہے. اس میں پیاز ہے اور دیگر جو سبزیاں اس کے اندر ڈلے ہوئے ہیں، دیسی سٹائل میں بنایا ہے. اور یہ ہمارا لنچ ہے آج کا. اور سامنے ہاں، اور ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، گاؤں دکھاؤں. سامنے یہ گون گاؤں ہے، یہ بہت مشہور گاؤں ہے. یہاں کا تربوز بہت مشہور ہے. اس تربوز کی جو ٹیسٹ ہے میرے خیال سے دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. گون کا تربوز لوکل بہت مشہور ہے. آپ اگست سپتمبر کے مہینے میں جب بھی موقع ملے اس گون کا آپ تربوز ٹیسٹ کیجیے گا. اور ساتھ میں کرس گاؤں ہے، اور کرس بھی بہت خوبصورت گاؤں ہے. اس کے پیچھے واڑی گاؤں ہے. تو یہ 3 گاؤں ہمیں یہاں سے ایک ساتھ دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور یہ بھی اپنے آپ میں ایک یونیک فیچر ہے. گریٹ. واہ، مزہ ہے سر. اس میں تو پیاز بھی ہے. ہاں، اس میں پیاز ہے، سبزی ہے. واہ. اور یہ بہت اٹس کائنڈ آف کسٹم میڈ بریڈ. بالکل. اور اس ہائٹ پہ تو اس کا الگ مزہ ہے. محمد علی ستپارہ. بالکل. We are honored that Muhammad Ali Satpara is with us today. بالکل. On this mountain. بالکل. And we are really thankful to you, Muhammad Ali. اس ہائٹ پہ چڑھے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم یہاں تک ان کا اب تک ساتھ دے پائے ہیں. اور ہمارا اگلا ڈیسٹینیشن ذرا آپ اوپر کیجیے گا. اور یہ جو بادل نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہمارا آج کا ڈیسٹینیشن ہے. اور یہ ہم نے یہاں پہ ٹی بریک کی ہے. تو انشاءاللہ موسم نے ساتھ دیا تو ہم اوپر بادلوں تک ہو کے آئیں گے انشاءاللہ. جی ہم ابھی کافی ہائٹ پہ پہنچے ہیں. یہاں پہ ماشاءاللہ ایک چشمے کا پانی ہے، بہت مزے کا پانی ہے. یہاں پہ ہم نے پانی پیا اور اپنی بوتلیں پانی سے بھر دیا. جی ہم کافی ہائٹ پہ پہنچے ہیں. ابھی تقریباً یہ 14,000 فیٹ کی بلندی پر ہم ہیں. تو بڑا خوبصورت منظر ہے یہاں سے. دریائے شیوک اور کیرس گاؤں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو عباس چوپا صاحب اور محمد علی صاحب یہاں پہ ہیں، تو تھوڑا سا بریف کریں گے ہمارے اس ٹریک کے بارے میں. جی جناب. جی تو سب سے پہلے محمد صاحب ہم شکر گزار ہیں محمد علی ستپارہ
फेमस माउंटेनियर, और मोहम्मद अली सत्पारा साहब अल्लाह का शुक्र है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये दुनिया का मतलब रिकॉर्ड कायम करने वाले माउंटेनियर्स में इनका शुमार होता है। इन्होंने 8000 से ऊपर दुनिया के बुलंद तरीन चोटियाँ जैसे K2, माउंट एवरेस्ट, नांगा पार्बत, G1, G2 और नेपाल में भी बेशुमार माउंटेन्स जो 7000 8000 के से ऊपर के माउंटेन्स इन्होंने सबमिट किया हुआ है। और इनका रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने विंटर में यानी कि सर्दियों में, नॉर्मल लोग गर्मियों में नहीं चढ़ सकते, सर्दियों में जहाँ टेम्परेचर -70 -80 के टेम्परेचर में इन्होंने नांगा पर्वत को सबमिट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। सेकेंडली इन्होंने लास्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को विंटर्स में ट्राई किया। विंटर में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को ट्राई किया, लेकिन बदकिस्मती से बिल्कुल आखिरी समिट के मुकाम से कुछ हादसात की वजह से ये कर नहीं सके, वापस आए। लेकिन इनकी काविश भी हुई, जो काविश उन्होंने की, जो कोशिश उन्होंने की, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो इनका शुमार दुनिया के टॉप माउंटेनियर्स में होता है। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज ये हमारे दिल रखने के लिए इस छोटे से पहाड़ के ऊपर आज इन्होंने हमारे साथ क्लाइम की है, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं और हम बहुत इस बात पे प्राउड फील करते हैं। और ये मकाम भी खैर नॉर्मल हाइकर्स के लिए या ट्रैकर्स के लिए कोई आसान बात नहीं है। इस वक्त हमने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हमने तकरीबन 14,000 फीट की बुलंदी को हमने अभी टच किया है और थोड़ा सा रहता है। और हमारी इस वक्त कोशिश ये है कि हम वो भी कर लें, और बेशक रात हो जाए रास्ते में, और ये मौका हमें बार बार नहीं मिलता। माउंटेन्स तो बेशुमार है, हम रोज़ चढ़ते हैं, लेकिन मोहम्मद अली सत्पारा के साथ मेरे ख्याल से 2012 के बाद हमने ये क्लाइम किए हैं। और चूँकि 2012 में मोहम्मद अली सत्पारा के साथ हामिद साहब, आप, मैं, हम तीनों ने K2 बेस कैंप किया, गंडोगोरो किया, तकरीबन 1 महीने का हमने पहाड़ों में ग्लेशियर्स में टेंट किया, कैंप किया, ग्लेशियर्स में हम रहे, साथ खाए पिए और क्लाइम्स किए। तो मोहम्मद अली साहब से भी मैं कुछ इनके एक्सपीरियंस से मौके से फ़ायदा उठाते हुए इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। तो मोहम्मद साहब बताएं कि आपने इतने सारे पहाड़, दुनिया के माउंटेन्स, हाईएस्ट माउंटेन्स आपने क्लाइम किया और कोई लिमिट आपने नहीं छोड़ा, मतलब दुनिया के बुलंद तरीन जगहों पे आप गए, तो अब भी आपके अंदर ऐसा कोई जज्बा है कि इससे कुछ और ज़्यादा करें? और ज़्यादा करने के लिए तो कुछ है नहीं वैसे हमारे ख्याल के मुताबिक। बस आप सबकी दुआ और इंशाल्लाह कि मेरा प्रोग्राम ये है कि अभी अल्लाह के फजल करम से हाल ही में अभी 2 पीक मैंने ट्राई किया आटम में, जिसमें नेपाल का मनासलू जो 8163 मीटर उसकी हाइट है, तो वो हमने सबमिट किया। सबमिट में भी मुख्तलिफ इसकी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि उसमें मैं टीम लीडर था, यानी कि फिक्सिंग टीम लीडर था वहाँ पे। और मैं उस ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इतने बड़े नेपाल में इतने मतलब शर्पास हैं वहाँ पे, उनका एक नाम है और उनका एक टेक्निकल हैं वो शर्पा, उनके पास ट्रेनिंग स्कूल्स हैं इस तरह के, और वो ट्रेनिंग्स करके आते हैं। तो ऐसे पहाड़s में इतने आपके 400-500 क्लाइंबर जो है आपके रोड को फॉलो करते हैं, आपके रूट को फॉलो करते हैं। तो उसमें एज ए टीम लीडर और इसमें फिक्सिंग टीम लीडर अल्लाह का फजल करम से मैं था, तो बहुत खुशी होती है। और इसी माउंटेन से मैंने सीखा है कि क्लाइंबिंग भी इसी 8000 के अंदर जो है मैंने क्लाइंबिंग स्किल्स जो टेक्निक्स है इसके अंदर मैंने सीखा है। तो इंशाल्लाह इसके बाद मेरा प्रोग्राम जो है फ्रांस का है, उसमें हिमालयन एक स्कूल है वो हमें स्पॉन्सर करता है। उसमें हम फ्रांस के जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको लेके अभी इंशाल्लाह 6 फीमेल हैं मेरे साथ और 4 जो है लड़के हैं मेरे साथ, तो उनको साथ लेके मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ आगे एकंकावा में, अर्जेंटीना में। तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, तो बस बहुत खुशी होती है। अच्छा, तो आपने K2 भी किया, आपने माउंट एवरेस्ट भी किया, नांगा पर्वत किया, तो इन सब में आपको मुश्किल कौन सा माउंटेन लगा चढ़ाई करने के लिए, क्लाइम करने के लिए? मुश्किल तो जाहिर बात है, आपने अभी फरमाया कि विंटर्स में बहुत डिफिकल्टीज हमारे सामने आती है। जैसे कि विंटर्स से वर्ल्ड का पहला क्लाइंबर हूँ जिसने 7 दफ़ा विंटर्स में माउंटेन के ऊपर ट्राई की, जिसमें फर्स्ट मेरा स्टेप जो है 2008 ब्रॉड पीक था। उसमें हम 7800 में जाने के बाद जो है हवा ने मतलब हमारे साथ नहीं दिया, एक साथी हमारे साथी को हवा ने उड़ाया वहाँ से। तो उसके बाद हम वहाँ से वापस हो गए और बहुत सख्त रात हमने वहाँ गुजारी। स्नो केव बनाते हैं हम वहाँ पे, तो स्नो केव के अंदर मैं और एक पोलिश क्लाइंबर, 2 पोलिश क्लाइंबर, एक की यूके का हमारा दोस्त, हम 4 ने वहाँ पे
स्नो केफ में रात गुजारी, तो वो रात मुझे बहुत मतलब सख्त महसूस हुई अब तक की। तो उसमें मतलब पूरी बॉडी में आइस जमने का हमें ख़तरा महसूस हुआ। उसमें पूरी रात हम मूवमेंट में रहे, उसके बावजूद भी माइनस 48-50 था रात को। -50 मतलब हाँ, सोच है। जी जी जी। तो -50 कभी 55 भी होता था। जो सुबह का टाइम था उसमें 58 में भी हम लोगों ने देखा टेम्परेचर जो है। तो वो रात हमारी बहुत टफ गुजरी। अच्छा, आपसे मुतल्लिक एक बात बहुत स्पेशल है, बहुत खास और बहुत यूनिक है। वो ये कि मोहम्मद अली साहब इतने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, इस बुलंदी के ऊपर विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करते हैं। जी जी। आप ये बताएं, आप बगैर ऑक्सीजन के क्लाइंब करते हैं इतने हाईएस्ट माउंटेन्स के ऊपर जहां टेम्परेचर भी बहुत डाउन होते हैं, और मेडिकली ये कहा जाता है कि उस हाई एल्टीट्यूड पे नॉर्मली जब बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलते हैं तो जिसमें हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बनाना शुरू करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इश्यूज आते हैं। आपने कभी ऐसा, आपको कोई ऐसी डिफिकल्टी कभी महसूस आपने नहीं की? इसमें मुश्किल पेश आया? इसमें बात ये है सर कि हमारे जो दूसरे शर्पा हैं या दूसरे हाई एल्टीट्यूड जो पोर्टर हैं, वो माउंटेन क्लाइंब करने के बाद जो है वो घर में आके रेस्ट करते हैं और मतलब इजीली वो बैठ जाते हैं, इस तरह का सीन करते हैं। जब मैं माउंटेन से आता हूँ, अभी हाल ही में मैंने 2 माउंटेन ट्राई करके आया। एक में समिट हुआ, एक में हम तकरीबन 7500 से वापस हो गए। तो उसके बाद वो कौन से पहाड़ थे? इसमें नेपाल का मनासलू और धौलागिरी। अच्छा। तो इसी साल अल्लाह के फजल कम से मैंने 8,000 किए इसी साल में 2019 में, जिसमें दुनिया का तीसरे नंबर का लोचे है 8,516 उसकी हाइट है। वो भी मैंने विदाउट ऑक्सीजन की। और माकालू जिससे मसलन मुख्तलिफ नाम से माउंटेन्स के ना, अब विंडी कहते हैं, विंडी माउंटेन माकालू को। बहुत सर्दी है, वो हम बहुत उसमें मतलब विंड है और आपको कोल्ड जो है सबसे ज्यादा माकालू में मिलेगा। अच्छा, विंड से मुझे याद आया, जब 2012 में मैंने आपके साथ गंडोगरोड को क्रॉस किया, तो मैं पहले निकल गया गंडोगरोड टॉप पे। मैं पहुंचा तकरीबन सुबह 4 बजे के अजान के वक्त में टॉप पे पहुंचा। तो मुझे उस टॉप के ऊपर, उसके हाइट तकरीबन 5,600 फीट की बुलंदी, हालांकि वो कुछ भी नहीं था जिस एल्टीट्यूड पे आप जाते। तो मुझे लगा, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा कपड़े पहने हुए थे, डाउन सूट वगैरह, मुझे लगा बिल्कुल मैंने कुछ नहीं पहना हो, इस कदर चुपने वाली सर्दी थी। तो आप K2 और एवरेस्ट उस 8,000 से ऊपर ऑलमोस्ट नियर टू 9,000, बल्कि कुछ माउंटेन ऐसे हैं। तो वहाँ पे किस तरह मैनेज करते हैं सर्दी को, किस तरह आप काबू करते हैं? असल में जो मेन थिंग्स है वो तो हम वेदर फोरकास्ट चेक करते हैं माउंटेन के ऊपर। तो ऑलरेडी हमारे जो एक्सपीडिशन है वो वेदर फोरकास्ट के लिए पे करते हैं। तो जो इतनी मतलब विंड है उस हिसाब से तो इतना विंड नहीं होता माउंटेन्स के ऊपर। तो कभी कभार विंड चलती है, स्पेशली इस विंटर में, जिसमें 2012 में हम लोगों ने G1 पे ट्राई किया, जिसमें मेरा एक करीबी दोस्त और 2 मेरे साथी मैंने उसमें गवाए। तो इस तरह के मतलब मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात मैंने देखे कि अब 14 हम लोग साथी, जिसमें नेपाली शर्पा और पाकिस्तानी हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स ने हम लोगों ने साथ ये क्लाइंबिंग हमने स्टार्ट की। उसमें से मैंने 12 साथी हमने गवाए इस फील्ड के अंदर। उसमें से अभी हम 2 बचे हुए हैं। तो अभी सारे साथी हमें कहते हैं कि अली अब तुम दोनों ने कब मरना है। तो इस तरह के मतलब वो होते हैं। फिर भी अल्लाह के फजल करम से याद आती है उनकी, मतलब मुख्तलिफ से उसमें हम उनको याद करते हैं। जैसे इस तरह के माउंटेन्स में जब आप जैसे लोग जो कदरदान हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, तो उनकी फैमिलीज, उनका जितना हो सके हम हेल्प भी करते हैं उनका। और हमारे जो साथी हैं वो अक्सर हमें कहते हैं कि 12 तो ऑलरेडी वो गए, आप दोनों ने कब मरना है। अच्छा, तो इससे एक बात मुझे याद आती है। वैसे खैर जिंदगी मौत खुदा के हाथ में होता है, हर इंसान ने मरना है, लेकिन ये बात नोट रखिए, जो स्पोर्ट्समैन होता है, जिसके अंदर स्पोर्ट्समैन करेज होती है, स्पोर्ट्समैनशिप होती है, उनके ख्याल में कोई मिशन करते हुए, कोई मुहिम करते हुए मरने को वो समझते हैं, हेरोइक डेथ समझते हैं उसको, यानी कि उसको एजाज समझते हैं। तो आप जैसे लोगों के लिए वो कोई मानी मौत, जिंदगी कोई मानी न रखता, और हिम्मत करते हैं, और आप बहुत ज़्यादा हौसले के साथ इन मुश्किल रास्तों पे चल के और दुनिया के मुश्किल तरीन और कठिन चीज़ों को आप सहल करके छोड़ते हैं। तो